Hello students, I am Dr. Anita Pandey from Shri Shankaracharya Mahavidyalaya, Jinwani Bhilai. Today I am going to explain something about input tax credit under GST. What is the meaning of input tax? When any supply of services or goods is supplied to a taxable person, the GST charged is known as input tax. According to section 2 subsection 62 of CGST Act 2017, the definition is given as input tax in relation to a registered person means the central tax, state tax, integrated tax or union territory tax charged on any supply of goods or services or both made to him. This definition includes the IGST charged on import of goods and GST payable under RCM, which stands for Reserve Charge Mechanism. Input tax shall not include taxes paid under composition levy. Remember, input tax shall not include taxes paid under composition levy. Let's see the conditions for obtaining ITC. According to section 16 subsection 2, the following 4 conditions are to be satisfied by a registered taxable person for obtaining ITC. Number 1, he is in possession of tax invoice or debit note for other tax paying documents as may be prescribed. Second is, he has received the goods for goods or services or both. Third, the supplier has actually paid the tax charged in respect of supply to the government. And the last one is, he has furnished the return under section 39. So, if all above conditions are fulfilled, then credit is allowed. A registered recipient can claim credit in his return which is credited to his e-credit ledger. The credit so claimed and allowed is provisional. This is described in section 41, and ITC becomes final post matching thereof in accordance with provisions of section 42. Various situations related to ITC. There are mainly 5 situations. Let's see what are these situations. Number 1, when receipt and supply of goods or services or both are in one state. इस सिचुएशन को हम एक एग्जांपल से देखते हैं. मान लीजिए कि किसी स्टेट में जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनकी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई की जो वैल्यू है वो 12,000 रुपीज़ है, और जो गुड्स एंड सप्लाई का जो परचेस वैल्यू है वो 10,000 रुपीज़ है, और उस स्टेट में CGST और SGST की जो रेट है वो है 6%. तो ऐसी कंडीशन में अगर हमको ITC कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा तो हम कैसे करेंगे. टैक्स पेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स इज इक्वल टू 12%, उसका 6% 12,000, उसका आप 6% निकालेंगे, दैट विल बी
720 rupees. अब इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन इनपुट गुड्स ऑफ रुपीज़ 10,000, ये इसका जो 10% इसका जो 6% हम निकालेंगे वो होगा 600 रुपीज़। तो दोनों 720 रुपीज़ और 600 रुपीज़ को लेस करने पर हमको मिलेगा नेक्स्ट टैक्स पेबल बाय कैश बाय द डीलर इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर 120 रुपीज़। सेकेंड सिचुएशन है व्हेन यूज ऑफ इनपुट गुड्स आर टैक्सेबल एंड टैक्स एग्जेम्प्टेड। इस कंडीशन में फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक मैन्युफैक्चरर ने इन स्टेट 10,000 रुपीज़ का माल जो गुड्स है वो परचेज किया और उसका जो प्रोडक्शन हुआ तो दो प्रोडक्ट आए। एक प्रोडक्ट में 8,000 रुपीज़ की सप्लाई की थी, 8,000 रुपीज़ का जो सप्लाई हुआ था जिस पर CGST और SGST 6% है, और जबकि जो सेकेंड प्रोडक्ट था उस पर जो सप्लाई हुआ था उसका वैल्यू भी 8,000 था जो कि GST से एग्जेम्प्टेड है। तो अब यहाँ पर इनपुट पर जो CGST और SGST जो रेट है उसका वो है 6%। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? टैक्स पेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स इज़ रुपीज़ 8,000 टैक्सेबल है एक की जगह क्योंकि दूसरा एग्जेम्प्टेड है, उसका हम 6% निकाल लेंगे तो 8,000 का 6% होगा 480 रुपीज़। देन इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ टैक्सेस पेड ऑन इनपुट गुड्स रुपीज़ 10,000 होता है अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट, तो इसका हम निकालेंगे तो 300 रुपीज़ होगा। और नेक्स्ट टैक्स पेबल फॉर कैश बाय द डीलर दोनों का जो डिफरेंस है 180 रुपीज़ होगा, और जो अनयूटिलाइजेबल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ टैक्स फ्री सप्लाई जो है वो 300 रुपीज़ शो करेंगे क्योंकि 50% ही जो वैल्यू होती है वो टैक्स फ्री होती है, GST से एग्जेम्प्टेड होती है। 50% जो गुड्स की सप्लाई हुई है उसका 50% ही GST से GST से एग्जेम्प्टेड होता है, इसलिए 10,000 का हम 50% निकालेंगे तो 5,000 होगा, उसका 6% 300 होगा। थर्ड कंडीशन जो सिचुएशन है, थर्ड सिचुएशन इज परचेस ऑफ गुड्स इन द स्टेट एंड इट्स सप्लाई आउटसाइड द स्टेट। परचेस ऑफ गुड्स इन द स्टेट, अब मान लीजिए कि जो इंटर स्टेट सप्लाई है वो 12,000 रुपीज़ है, इसके ऊपर जो IGST की जो रेट है, इंटर स्टेट है इसलिए IGST की रेट इस पर 18% है। ठीक है, अब विद इन द स्टेट जो रिसीविंग वैल्यू है वो है 10,000 रुपीज़, इसके ऊपर CGST और SGST की जो रेट है वो 9% है। तो ऐसी कंडीशन में ITC कैसे कैलकुलेट करेंगे? टैक्स पेबल ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स 12,000 इंटू 18% है इसलिए 18, IGST है इसलिए इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन इनपुट गुड्स 10,000 अवेलेबल है, तो उसका हम कितना परसेंट निकालेंगे? 9% है इसका, तो 10,000 का 9% कितना होगा? 1,900 होगा, और 12,000 का 18% जो IGST है वो IGST कैलकुलेट होगा क्योंकि स्टेट ये इंटर स्टेट है इसलिए स्टेट का SGST और CGST को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो इस तरह से 12,000 का 18% निकालने से जो आएगा वैल्यू वो होगा 2,160, एंड उसमें से SGST 900 और CGST 900 यानी टोटल 1,800 अगर हम लेस करते हैं तो जो नेट टैक्स पेबल आएगा वो आएगा लेस करने के बाद में 360। फोर्थ कंडीशन इज रिसिप्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम एनी अदर स्टेट एंड इट्स सप्लाई इन द होम स्टेट। तो रिसिप्ट्स ऑफ गुड एनी अदर स्टेट,
और उसकी जो सप्लाई है वो होम स्टेट में होती है। फॉर एग्जांपल जो गुड्स की सप्लाई है वो विद इन स्टेट 12,000 है और उसके ऊपर SGST और CGST 9% है, और इसका जो इंटरस्टेट वैल्यू है इस गुड का वो 10,000 रुपीज़ है। सपोज़ ये एग्जांपल दे रही हूँ मैं, तो इसके ऊपर IGST की जो रेट है वो 18% है। तो ऐसी कंडीशन में टैक्स पेबल ऑन इंटरस्टेट सेल ऑफ गुड्स कितना है? 12,000। इसका आप कैलकुलेट करेंगे। 12,000 का 9% SGST आएगा 1,080 एंड CGST आएगा 1,080 एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ टैक्सेस पेड ऑन इनपुट गुड्स ऑफ ₹10,000। इसके ऊपर आप निकालेंगे 18% है इसकी रेट, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा SGST के लिए 720 एंड CGST के लिए 1,080। तो इस तरह से टोटल टैक्स हो जाएगा 720 प्लस 1,080 इज इक्वल टू 1,800। और SGST में से अगर हम लेस करते हैं तो जो नेट टैक्स पेएबल रहेगा SGST का वो आएगा 1,080 माइनस 720 इज इक्वल टू 360। एंड फिफ्थ एंड लास्ट कंडीशन इज situation is receipt of goods and sale of goods are an interstate supply। जब ऐसी कंडीशन होती है, यहाँ पर उसी एग्जांपल में देखेंगे कि जो इंटरस्टेट सप्लाई थी वो 12,000 रुपीज़ की थी और उसकी जो वैल्यू है रिसिप्ट वैल्यू जो है वो भी 10,000 है और IGST की जो रेट है 12% है। तो यहाँ पर कैसे कैलकुलेशन करेंगे? 12,000 का 12% IGST आएगा 1,440 और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ टैक्सेस पेड ऑन इनपुट गुड्स वो होगा 10,000 अवेलेबल होगा, तो उसका 10% 1,200 हो जाएगा। और यहाँ पर नेट टैक्स पेएबल बाय कैश बाय द डीलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर वो हो जाएगा 1,440 माइनस 1,200 इज इक्वल टू 240। सो ये 5 सिचुएशंस थी। नेक्स्ट लेट्स सी व्हाट आर द मैंडेटरी डिटेल्स इन डॉक्यूमेंट्स फॉर क्लेमिंग ITC। एज पर रूल 36(2) of CGST Act 2017 requires the following details in documentary evidence and or invoices for claiming ITC. First one is the detail of the amount of tax charged. फुल डिटेल उस अमाउंट की होनी चाहिए जिसके ऊपर टैक्स चार्ज किया गया है। सेकेंड इज डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिटेल। थर्ड टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। फोर्थ इज GSTIN of supplier. Fifth, GSTIN of recipient. And sixth is place of supply. Let's see the time limits for availing ITC. The time limit is specified in section 16 subsection 4 shall not apply to a claim of re-availing of any credit. Remember it? The time limit is specified in the section 16 subsection 4 shall not apply to a claim of re-availing of any credit in accordance with the provisions of the Act. Time limit for availing ITC is the due date of furnishing of the return for the month of September following the end of the relevant financial year. The upper limit for taking ITC is 20th October of the next financial year
or the date of filing the annual return, whichever is earlier. So thank you.